this monologue, this female centric monologue has been written by 3 men, by the way. You know, it has been written by Aditya Dhar, Arsh Vora, और मेरा सा थोड़ा सा योगदान रहा है उसमें. तो 3 मर्दों ने ये लिखा है. So I just want to say that all girls who are going to have a bachelorette night, Pratik Gandhi is available. You know, he takes, you know. I received a video from one of the common friends that his 85-year-old dadi is enjoying it. अरे वाह. So it's a mad fun, yeah, and it is absolutely satisfying and gratifying. So Dhoom Dhaam has absolutely become a dhamakedar family entertainer. You know, Yami has a little issue in her. She had an injury many years ago. तो वो बेचारी ऐसे 2 घंटे के लिए हमने उनको लेटा के रखा था. और यू नो, यहाँ हमने 3-4 टेक ऐसे किए, वो ऐसे लेट के इतने कन्फाइंड स्पेस में. तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो शायद मुझको गाली दे रही थी और और तभी वो डायलॉग निकला है. Pratik and Yami both are constantly thinking, you know, about their characters, about their scenes. And you know, कॉमेडी में अगर आपने थोड़ा इम्प्रोवाइज नहीं किया तो फिर कॉमेडी करने का फायदा ही नहीं है लाइफ में, ठीक है ना. तो आप पेपर पे लिखते हैं, वो आपका ब्लूप्रिंट है. आप जब सेट पहुंचते हैं तो आपके 5 आइडिया आते हैं, ठीक है. 5 के 5 आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो, 5 में से आप 2 इंप्लीमेंट करते हो, पर वही इंप्लीमेंट करते हो that serves the film, you know. Hi, this is Pratik Gandhi and you're watching me on the YouTube channel of Shubhajit. Hi, this is Rishabh Seth and you're seeing me on Shubhajit's YouTube channel. You know, Dhoom Dhaam, ladies and gentlemen, is out. Netflix में आप लोगों ने सब enjoy किया है and काफी धूम धड़ाकेदार वाला response भी रहा है and I think entertainment is full on and most importantly, you know, what you relate with comedy movies especially is a bit of a surprise factor जो कि definitely रहा है. So congratulations Pratik bhai, congratulations Rishabh ji on a banger of a movie and you know, सबसे पहले you know, I wanna go to Rishabh ji and talk about the most trending factor, perhaps. Of course, Pratik and the scenes are doing well as well, but then this monologue of Yami, जो है, which is going viral everywhere. People are like, यार हम लोग ने already वो मेल वाला perspective का जो you know monologue था वो हम लोग ने देखा, but finally, you know, we are getting to see that female perspective of the monologue as well, जो कि बहुत मजा आ रहा है. हर कोई ना कोई शेयर कर रहा है. तो वो मोनोलॉग का जो रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग, डिड यू इवन थिंक कि इस तरीके का अलग से उस चीज को लेके एक फैन बेस बन जाएगा? So see, firstly we must congratulate Yami for how fabulously she has performed it, you know, and she did the whole monologue in one take, which is in itself, right? ऊपर से we have to definitely you know, applaud this monologue. This female centric monologue has been written by 3 men, by the way. You know, it has been written by Aditya Dhar, Arsh Vora, और मेरा सा थोड़ा सा योगदान रहा है उसमें. तो 3 मर्दों ने ये लिखा है. और एक what we noticed on the Netflix page itself is that it became a real conversation starter. There were many people that were debating about it, were commenting on it. Some were applauding it. Some have also said, क्या है यार, सब मर्द ऐसे नहीं होते हैं. तो ऐसी बातें हुई हैं उसके ऊपर. But one thing that's undeniable is that people are talking about it across the board. और ये ऐसा कोई I should clarify कि हम यहाँ किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए थे. You know, like लव रंजन का जो मोनोलॉग था बहुत प्यारा था. कार्तिक आर्यन ने सुपरबली परफॉर्म किया. ये हमारा है, लेकिन ये उसके लिए जवाब नहीं है. ये इन इट सेल्फ इन आइसोलेशन भी बहुत जरूरी बात हमको ऑडियंस के सामने लाने का मौका मिला और हमने उसका इस्तेमाल किया. And I constantly say this. I said this monologue is for the women to relate to, but for the men to listen to. You know, the men have to understand what the female experience is like, and this has been a very small way in which we managed to contribute to the narrative. You know. क्या बात है, and I think that's a very interesting statement for women to relate to and men to listen to. I think जब हम लोग ऐसे conversations के time पे instead of going into comparison, we understand the depth of the matter, वो और ज्यादा better हो जाता है situation. So well done on that. प्रतीक भाई, मैं कहाँ से चालू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आपके तारीफ का सिलसिला, बिकॉज मैं एक्टिंग का तारीफ करूँ या वो जो बिस्किट्स आपने बनाए वहां पे एब्स उसका तारीफ करूँ या फिर वो जो आपने डांस किया वहां पे पोल डांस एकदम लग रहा था कि एकदम टेलर मेड फॉर दैट, वो क्या किस चीज से तारीफ शुरू करूँ, आप खुद बताओ मुझे.
Arey yaar, so sweet of you. Thank you very much for saying everything. I'm very happy that I could do something that I had never done before, and audience loved it. People are enjoying it. This was meant to have fun, lot of fun, and there are so many reactions that we have received from the audience. Well, something like this, imagine this particular sequence that you're talking about, the whole pole dance and madness. I received a video from one of the common friends that Yeah. his 85-year-old dadi is enjoying it. अरे वाह. So it's a mad fun, yeah, and it is absolutely satisfying and gratifying. So Dhoomdham has absolutely become a Dhamakedar family entertainer because every age group is enjoying it. I love doing it, and a lot of it is impromptu. All those moves and dances and all. Vijay Ganguly, who's a choreographer, we did a lot of jamming together. And then before the shoot, he said that just go and have fun. So all those Yeah. things that we discussed and we rehearsed, I used it at various places of the song. But it's a madness, yeah. It's a madness. So I just want to say that all girls who are going to have a bachelorette night, Pratik Gandhi is available. He takes जितने भी bookings है सब बंद कर दो because truly you cannot have a better dancer than Pratik Gandhi over here. He's done it on screen. He'll entertain you like never before. क्या बात है? ऋषभ जी ने खुद बोल दिया. That's what it is. But you got to tell me. Usually हम लोग कहते हैं कि I mean, again, it's not a gender thing, but then usually बोला जाता है कि लड़कों को speed से बहुत प्यार होता है. When they get their hands on, say, a bike or a car for the first time, पहले वे जो वो जवानी वाला जोश होता है ना, तो वो लोगों को भगाना होता है, etc. On the other hand, यहाँ पे आपके पीछे गुंडे या whatever CID पड़े, at that point of time you think गुंडे पड़े, but then still you are that very sober guy who's looking forward to following rules वगैरह. Yami is being the badass over there, and Yami is actually going all guns blazing. असली जिंदगी में जब आप जवान थे, जब आपने पहली बार गाड़ी वाड़ी चलाना सीखा, तो वो स्पीड का वो जो था चस्का वो था, या फिर ऑलवेज यू आर वेरी डिसिप्लिन सोबर बॉय? नहीं था यार स्पीड का चस्का. उसका रीजन ये था कि पहली बार मैंने जो गाड़ी चलाई थी वो मेरे दोस्त की गाड़ी थी, जो उसके पापा उसको भी चलाने नहीं देते. तो वो चोरी से लेके आया कि ऐसे ही राउंड मारने चलते हैं. देन आई सेड कि कैन आई ट्राई. उसके पहले गाड़ी कभी चला ही नहीं थी, तो उसकी मारुति 800 पहली बार में बैठा. तो डर सिर्फ ये था कि ठीक ठाक यहाँ से यहाँ तक चला लूं थोड़ा. स्पीड तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि कुछ भी हुआ तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा. लाइफ में कभी चलाने गाड़ी किसी की. तो उस डर के मारे हमने तो धीरे धीरे चलाना सीखा. फिर मैंने जब मेरी पहली गाड़ी ली थी तब भी मैं वैसे ही लेके आया था कि यार आराम से चलाते हैं. तो स्पीड का चस्का मतलब वो वीडियो गेम तक ही ठीक रहा. वही सही है. In terms of safety and everything. So you should know one thing, Shubhoji, that Yami does not know how to ride a bike. She learned how to ride a bike for the film, and like I still don't know how to ride a bike, but Yami learned it. वो बेचारी और हमारी सारी रात की shoots होती थी, and in the few hours that she used to get to sleep during the day, the poor thing used to get up and go and learn the bike. So one has to really applaud her efforts in the film as much as Pratik's. She was really like all for the role and really gave everything that she could as an actor. And because of that, a lot of reactions are very real. Yeah. When I was एकदम sitting दूर से behind आने her, वाले organic वाले equations and reactions है. And of course acting का तो देखो सर स्क्रीन में दिखता है, but then acting के पीछे वो जो काम होता है ना, there's a lot of good writing involved as well. ये डायलॉग कहाँ से आया प्लीज मुझे बताइए. आप से लेके तू तक और तू से लेके चू तक, ये मेरे आसपास के जितने दोस्त थे, they already started using around and I have heard similar instances around me. ये कहाँ से आया डायलॉग? Because this is a very Gen Z oriented dialogue. उनको भी समझ में आए, and at the same time बड़े लोग भी लोटपोट हो रहे हंस के ऐसे डायलॉग्स के साथ. So it's again touching based upon every age group. जैसे कि आपने पहले कहा, ऐसे डायलॉग्स where have these originated from actually? So definitely we have to give all credit to Aditya and Arsh, for the writing of the film. And I think लेकिन यामी उस दिन इतना थक गई थी कि शायद ये डायलॉग तो उनके दिल से निकला था, क्योंकि वो it was we were actually shooting in very very adverse circumstances. Both Pratik and Yami were in a really confined space, and placed together.
तो ये शूट इसका जब हम कर रहे थे, एंड यू नो यामी हैज अ लिटिल इशू इन हर, शी हैड एन इंजरी मेनी इयर्स अगो, तो वो बेचारी ऐसे 2 घंटे के लिए हमने उनको लेटा के रखा था, और यू नो यहाँ हमने 3-4 टेक ऐसे किए, वो ऐसे लेट के इतने कन्फाइंड स्पेस में, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो शायद मुझको गाली दे रही थी, और और तभी वो डायलॉग निकला है। डायलॉग निकला प्रतीक के लिए, इतना रियल लगा कि जैसा कि आपने कहा एकदम दिल से निकला है छूने के लिए दिल को। That's what it is. प्रतीक भाई मुझे एक चीज बताओ, अनदर सीन विच आई फाउंड रियली इम्पैक्टफुल वाज एकदम लास्ट में द क्लाइमैक्स वाला सीन, जब आपको एकदम घुसे लात वगैरह सब पड़ रहा है, बट द मोमेंट यू नो किसी ने आपके प्यार को छुआ ऑन स्क्रीन, यू नो तब यू नो द हीरो द हल्क इनसाइड यू दैट इवॉल्व, जो कि बहुत लड़कों के साथ होता है, वो आर नॉट वेरी आउटरेजियस ऐसे बाहर से, बट अगर उनके एंड नॉट जस्ट यू नो गर्लफ्रेंड या पार्टनर, किसी परिवार वाले या किसी के भी ऊपर भी अगर मुसीबत आता है, तब वो जो अंदर का मर्द है ना, जो कभी कभी शायद थोड़ा सा यू नो दबा हुआ रहता है, वो और ज्यादा उभर के आता है, राइट? अपने असली जिंदगी में कभी ऐसा महसूस किया है, मे बी ड्यूरिंग योर कॉलेज या फिर इन लाइफ वेयर समवन ट्राई टू यू नो मिस यू? बिकॉज आप, मुझे जितना बार भी मैंने आपसे बात किया, आई हैव नोन यू, आई हैव ऑलवेज फाउंड यू टू बी वेरी स्वीट सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, बट जब गुस्सा आता है ना ऐसे इंसान को, तो वो वाला गुस्सा बहुत खतरनाक वाला होता है। तो ऐसा कोई गुस्से वाला इंस्टेंस याद है जिंदगी में? बहुत बार हुआ है यार, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। सो मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि यू डोंट गेट एंग्री फ्रीक्वेंटली, सो यू यूज दैट एंगर एट अ करेक्ट टाइम, बचा के रखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू नो व्हेन यू आर एंग्री, people around you also know कि this is it, now let's not go beyond this. So उसमें हाथापाई की मोमेंट बहुत कम हो जाते हैं, because वहां तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पर हाँ ऐसा गुस्सा आता है बहुत बार, most of the time you want to avoid. राइट। एंड एक और चीज मुझे बताइए, ऑफ कोर्स यू नो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन स्क्रीन तो एवरीथिंग इज प्रोफेशनलिज्म, बट आपको बैक ऑफ द माइंड पता है कि यार यामी है, आई हैव रोमांटिक सीन्स अराउंड हर, बट देन आल्सो आदित्य जी जो है वहां पे, वो भी वहां पे है, ही इज आल्सो कीपिंग अ नाइस ट्रैक, तो उसका प्रेशर आते है एडिशनली कि यार मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन यार वो जो बंदे हैं जो मेन भाई साहब है, वो भी नजर रखे हुए काम कैसा चल रहा है। आदित्य को हम सेट पे आने नहीं देते थे, यू नो। तो नहीं, पर एक चीज बहुत स्वीट है, यू नो, यामी एंड आदित्य आर सो मच इन लव एज अ कपल, इट्स सो लवली टू सी देम टुगेदर। तो कभी कभार ना मैं यामी से बात कर रहा होता था, एंड यामी उस तरीके से ना बहुत प्रोफेशनल और काम को बहुत सीरियसली लेती हैं, व्हेन शी इज डिस्कसिंग आल्सो शी लुक्स वेरी सीरियस, यू नो, राइट। सडनली ऐसे बीच बीच में वो बातें करते करते उनका चेहरा खिल जाता था। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने क्या बात बोल दी यार, इस फील एंड ओ माय शोल्डर आई सी आदित्य गाड़ी से उतर रहे हैं, यू नो, कि उन्होंने उनके हस्बैंड साइड पे पधारे हैं और यामी जी का चेहरा खिल गया है। तो पर जब भी कोई प्यारा इंटीमेट सीन था, आदित्य वाज नॉट अलाउड ऑन सेट, लाइक भाई आप घर पे ठीक है। But I think that speaks so much of the love and security that they have between each other as well, right? You know, I mean, I think it was a different movie जिसके लिए promotions के time पे when she was just expecting, वो जो उनके expecting का news जब आया था, how sweetly Aditya was, you know, taking care of her with putting pillows and her, तो वो दिखता है, वो comfort zone security दिखता है। And of course अगर co-actors होते प्रतीक या कोई भी हो, तो वो थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बिकॉज यू नो दैट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी एनीवेयर क्लोज टू द सेट एंड द ऑरा, राइट? एक सवाल आप दोनों के लिए कॉमन रहेगा बिफोर आई परहैप्स क्लोज द कॉन्वर्सेशन, वो ये है कि यू नो प्रतीक ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ ग्रेट बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस, एंड सो डज यामी। प्रतीक हैज दैट थिएटर बैकग्राउंड एज वेल. ऋषभ जी ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिबल बैकग्राउंड. सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दोनों ही, जितना प्रतीक का तो मुझे पता है इज वेरी फन लविंग जनरली, सो कॉमेडी या सीन्स जब होता है ना, यूजुअली एक्टर्स हैव अ लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम देयर एंड्स एज वेल, राइट? तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि बियॉन्ड जस्ट द एक्टिंग पार्ट, प्रतीक के खुद के इनपुट्स कुछ थे कि यार ये सीन ना, मुझे पता है कि अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसा बनाओगे ना तो और ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, और अगर उसने वैसे सजेशंस दिए तो हाउ ओपन वर यू टू दोस काइंड ऑफ फीडबैक एंड सजेशंस? See, Pratik and Yami both are constantly thinking, you know, about their characters, about their scenes. And you know, comedy में अगर आपने थोड़ा improvise नहीं किया तो फिर कॉमेडी करने का फायदा ही नहीं है लाइफ में, ठीक है ना? तो आप पेपर पे लिखते हैं, वो आपका ब्लूप्रिंट है। आप जब सेट पहुंचते हैं तो आपके 5 आइडिया आते हैं, ठीक है, 5 के 5 आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो, 5 में से आप 2 इंप्लीमेंट करते हो, पर वही इंप्लीमेंट करते हो that serves the film, you know. And the other thing is that comedy also requires a lot of discipline.
you know. It's very easy to get carried away with comedy, क्योंकि सेट पे ना आपके इर्द गिर्द सब आपके दोस्त हैं, सब भाईचारे में हैं, तो सब हंसते रहते हैं, पर ये मतलब नहीं होता है कि स्क्रीन पे जब आएगा वो लोग हंसेंगे, you know. राइट। तो प्रतीक और मेरा, यामी और मेरा तो बहुत ही कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप रहा है, you know. हमने काफी चीजें सेट पे जाकर इम्प्रोवाइज की हैं, चेंज की हैं, और you know, now we are hearing things like this film is number 3 across the world on Netflix in 13 countries. Wow. You know, बहुत अच्छा डिस्क्राइबर मिला है फिल्म को. It's being called a धमाकेदार फैमिली एंटरटेनर. तो जो भी हमने इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं, जो भी किया, आई गेस पीपल आर लाइकिंग इट एंड लैपिंग इट अप, so that gives us great joy. क्या बात है। एंड प्रतीक, लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई रैप इट अप वुड बी कि जो सम पीपल आर वेरी शाई नहीं होते, बिल्कुल एकदम एक्सप्रेसिव होते। ऑन द अदर हैंड, अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो शाई, इतने शाई है कि अपने नए बीवी के सामने भी वो कॉन्डोम वाला पैकेट जो है वो छुपा के रखना होता है, अगर दिख जाए तो उनको सॉरी बोलना पड़ता है। वैसे भी टाइप के लोग हैं, राइट? सो दैट इज देयर। आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा फॉर मे बी कपल्स और पीपल हु आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर अरेंज मैरिज? हालांकि एक पर्सनल चॉइस होता है किसको लव मैरिज करना है, अरेंज मैरिज करना है, लेकिन इवेंचुअली जाके बीइंग अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इन मैरिज योरसेल्फ, व्हाट वुड यू गिव अ सजेशन टू द यंग कपल्स आउट देयर गेटिंग मैरिड कि यार जो भी है उतार चढ़ाव, हाउ डू इवेंचुअली सस्टेन अ लॉन्ग फॉर्मेट रिलेशनशिप? वो चाहे शादी के पहले से अगो रिश्ता रहे या शादी के बाद नए से वो रिश्ता हो। I think through my own experiences, what I can say is that have patience and explore the person with that patience. So if you have that constant thing in mind that if it doesn't work out, I'll walk out of the relationship, then it will never work out. Because you are always there to walk out. You are ready to walk out in your mind. But the moment you accept that person in your life and start exploring, the life will be different. And also one has to understand that the real self will come out in the most difficult situation. Totally. So you don't hope for the difficult situation to come, but when it comes, have patience and understand the person. क्या बात है। So ladies and gentlemen, the message is loud and clear. Walk out नहीं करना है, workout करना है. That is what it is. And congratulations to Pratik bhai and Rishabh ji, both of you, for a fantastic movie. जितना मेहनत आप लोग ने किया है, I'm so happy to see that the results are going your way. And mashallah, touch wood, आगे जाके whatever you guys do, it it works in your favor and you get all the success on us. Shobha ji, sorry to interrupt you, but we have a big thank you to say to Jio Studios, and we have a big thank you to say to Netflix, जिनकी वजह से हमारी फिल्म आज 190 कंट्रीज में प्ले होगी, और is we are getting love from, I was saying earlier that Pratik received an email, fan mail from Costa Rica, saying that the film was loved. तो ये Netflix का ही contribution है हमारे फिल्म के लिए. So that is something we definitely want to say. Absolutely, and I think when idea and intent and hard work blends with the right resources, I think that's exactly what magic happens at that point of time, and that's exactly what the collaboration of Jio and Netflix have done for your film. So badhai ho, and looking forward to maybe I don't know, I mean it depends on you, but इसका story जो है आपने जिस तरीके से खत्म किया है, एक नया पार्ट 2 आप लाके कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज वो स्टोरी वहां से पिकअप हो सकता है. सो आई एम श्योर फैंस विल लव इट, बिकॉज कि शादी हो गया, इतना कुछ हो गया, इसके बाद क्या धूमधाम हो रहा है इनके जिंदगी में, दैट इज समथिंग पीपल वुड लव टू सी. सो आई मीन आई डोंट नो इफ यू हैव गॉट दैट सजेशन फ्रॉम अदर्स और नॉट, बट आई वुड लव टू गिव यू दैट सजेशन. डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू टेक इट और नॉट. धूमधाम 2 अगर आएगा तो मजा आएगा, लेकिन दैट इज व्हाट इट इज. That's a huge compliment, Shobhuji. Thank you so much. Thank you so much. God bless. Thank you, Pratik bhai. Always pleasure talking to you. Thank you so much, Neha, Rishida, everybody over here. God bless and thank you. Pratik bhai, जाते जाते एक सवाल मेरा जरूर बनता है before I let you guys go. Last सवाल promise, वो ये है कि I've seen your journey right from the beginning. आपके जिंदगी में अगर मैं पूछूं कोई ऐसा करो दिल की मर्जी वाला मोमेंट रहा है जहां पे genuinely you have listened only and only to your heart and ignored all sorts of suggestions and advices, जो कि मुझे पता है आपको ढेर सारे मिले लोगों से, वो क्या मोमेंट रहा है आपकी जिंदगी में? I don't know whether we spoke about this earlier, but जब मैं जॉब के साथ थिएटर करता था और ऑडिशंस के लिए जाता था ना, तो almost everybody, all the loved ones said कि don't do this, decide only one thing and then do it. And I listened, I heard everyone, but never listened to them. And I thought कि मैं अपने मन की करूंगा, मैं 2 चीजें साथ में करूंगा. That paid off well.
Absolutely it did, and which is why धूमधाम मचा रहे हो, धूम मचा रहे हो, धूम ऐसे ही मचाते रहो. God bless both of you. Thank you so much and take care. Thank you. Pleasure. Thank Thank you, you. thank you, Shubham.